Good morning everyone and welcome to the class. Today we will be starting new chapter in geography, chapter number 2, and the name of the chapter is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So the chapter is all about these land, soil, water, natural vegetation and wildlife. Okay, these all are resources, है ना. And the previous chapter was about the resources. The main idea of resources we got from that chapter, and this chapter is also about resources. These resources are natural resources like land, soil, water, then vegetation, wildlife. All these are natural resources and they are renewable. Okay, so we are going to study about all these in some detail. So first of all, what we find that there is very much people are having very different life in different parts of the world. Like the life of the people are determined by various factors like the land on which they are living, the soil, availability of water, then natural vegetation, animals, technology. All these are factors which give shape to our life. All these are factors which determine our life. इन फैक्टर्स से ही हमारा लाइफ डिटरमाइन होता है कि हमारी लाइफ कैसी होगी. You will see that in your book two examples are given. Two examples of two people, two children who are living at completely different places, and their life is also different. So you will see that Mamba is living in Tanzania, Africa. Okay, she lives in a small village in Tanzania, Africa. Mamba, okay, कहाँ रहती है? अफ्रीका के तंजानिया में. And how her life is, she gets up early in the morning. Why? Because she has to go very far away to fetch some water for the household activities. So every day she gets up early to fetch water, then she goes to fetch water. She walks a very long way, and then she comes back after a few hours. And after coming back, she helps her mother in the household works. Then she also joined her brother in taking care of their goat. They have goat, है ना. वो गोट को रेयर करते हैं. तो जब वो पानी लेकर आती है, उसके बाद मम्मा का हाथ बटाने के बाद भाई के साथ मिलके सी टेक्स केयर ऑफ द गोट्स. ओके, और अगर हम देखें तो वहाँ पर जो लैंड उसकी फैमिली ओन करती है, बहुत छोटी सी पीस है. इट्स अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड जो कि उसके हट के चारों तरफ है. छोटा सा हट है जिसमें वो लोग रहते हैं, उसके चारों तरफ एक पीस ऑफ लैंड है. बट दिस पीस ऑफ लैंड इज रॉकी. द रॉकी लैंड. As the land is rocky, so it is not suitable for agriculture. And what we find that Mamba's father, he grows some maize and beans on this rocky land with very hard work, because it is not easy to cultivate rocky land. So it is not very much suitable, and the production is also very low.
and this whatever they are earning from this agricultural activity and by rearing the animal, that is not enough to feed their family for the whole year. So they are in trouble, and their life is not easy. And now we see another the story of another child, that he is Peter. Okay, Peter, he is living in न्यूजीलैंड. ठीक है, वो न्यूजीलैंड के एक शीप रियरिंग रीजन में, एक ऐसे रीजन में जहाँ पर लोगों का जो प्राइम लाइवलीहुड है दैट इज रियरिंग ऑफ द शीप. ठीक है, वहाँ पर वो रहता है एंड हिज फैमिली हैज़ अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. हिज फैमिली ओन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. सो he goes to school every day, and after coming back from school he sees that his uncle is there and he takes care of their sheep. They have a sheep yard also in which sheep are kept, and the sheep yard is situated on a very wide grassy plain, the plain which has grass, so that the sheep can feed on that grass. है ना. तो यहाँ जो लैंड है वो कैसी लैंड है? द लैंड इज ग्रासी, इट्स नॉट रॉकी. है ना, लैंड बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ग्रास होता है उस पर, और इसलिए जो शीप को रेयर करना उनके लिए आसान होता है ना. और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि दे यूज़ अ वेरी साइंटिफिक वे टू मैनेज देयर शीप. अपने शीप की देखभाल करना, और जो वुड प्रोसेसिंग यूनिट है इन सब में वो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं. एंड नॉट ओनली दिस, एज द लैंड इज़ वेरी of good quality, it is very much suitable for agriculture. So what happens that Peter's family also grows vegetables on that land. So if we compare the life of Mamba and Peter, what we find? Mamba's life is tough, isn't it? She has to go to such a far distance in order to fetch water. Then the land on which she lives, or the land which her family owns, is a rocky land. So agriculture is also not done on that land in a proper manner. So she also does not go to school because she is busy with the household work. She is helping her mother, she is helping her brother. Okay, so her life is difficult. But on the other hand, we see that Peter is having a comfortable life, because we see that he goes to school every day, and the land on which the land which his family is owning is also very fertile. है ना. तो what is why this difference? Why the life of Mamba and Peter is different? Because of the difference in the quality of land. The most important difference जो हमें नज़र आ रहा है, Mamba जहाँ रह रही है वहाँ पर रॉकी लैंड है which is not suitable for agriculture, and Peter जहाँ रह रहा है वो ग्रासी लैंड है, isn't it? Then वाटर की अवेलेबिलिटी भी अगर हम देखें तो मम्बा जहाँ पर रह रही है वहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है, उसको बहुत दूर जाना पड़ता है. जबकि पीटर के साथ ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना. देन नेचुरल वेजिटेशन भी अगर देखें तो रॉकी लैंड में है तो वहाँ पर ग्रीनरी नहीं है ना. सो उसके जो गोट हैं वो बोथ ऑफ देम आर रेयरिंग द एनिमल, है ना. बट यहाँ पर मम्बा जहाँ रह रही है वहाँ पर ग्रास नहीं है,
अवेलेबल है, तो इसलिए वो लार्ज स्केल पे ये काम नहीं कर सकते। बट पीटर जहाँ है वहाँ वो ग्रासी लैंड है, तो ये फ़ायदा हो जा रहा है ना। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी को भी अगर देखें तो जो माम्बा है वो जहाँ पर रह रही है वहाँ पर दैट इज़ बैकवर्ड प्लेस, किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं किया जा रहा है। बट पीटर की जो एक उसकी फैक्ट्री है जहाँ पर वूल की प्रोसेसिंग होती है, तो पीटर को इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है और इसलिए उसकी लाइफ कंफर्टेबल है एंड Mamba's life is difficult. So these are the factors, है ना, which make our life either easy or difficult, है ना। तो हम कहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं they actually shape our life. Okay, so first of all we will study about land. Okay, land is one of the most important natural resources, and we you are knowing in the previous classes also, you have in the class 6 you have read about it that the land covers only 30% of the total area of the earth's surface. बाकी के जो 70% है that is covered by water, है ना। land covers only 30%, and what we find that ये जो 30% है जो कि लैंड कवर करता है, दैट इज़ ऑल्सो not habitable, means that is also not such land in which we can live, which is suitable for habitation of human being. There are many places which are not suitable for habitation, human habitation. So land is not something which is available in plenty. Land की कमी है ना, इट्स स्कार्स रिसोर्स, इसकी स्कैरसिटी है। दो पहले नहीं थी, बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये लैंड जो है उसकी अवेलेबिलिटी जो है, अवेलेबिलिटी तो वही बनी हुई है बट उसकी जो नीड है वो बढ़ गई है ना। तो अगर हम देखें तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, in different parts of the world the distribution of population is not same. What we find that there are some places in the world where high density of population is found, whereas there are some places where very low density of population is found. So why this uneven distribution of population? Why population is not evenly distributed in the world? So why this happens? Because of there are two main factors for this uneven distribution of land, uneven distribution of population. There are two main factors which affect this distribution of population. The first is climate, and second is land. ठीक है, क्लाइमेट और लैंड ये दो फैक्टर हैं जो कि किसी भी जगह पर पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। लाइक अगर जो हमारी लैंड है जिसको कि हम टोपोग्राफी भी कहते हैं, है ना, अगर टोपोग्राफी बहुत रफ है, काफ़ी स्टीप स्लोप्स हैं, है ना, लो लाइंग एरियाज हैं जहाँ पर कि वाटर लॉगिंग हो सकता है, डेजर्ट एरियाज हैं या फिर थिक फॉरेस्टेड एरियाज हैं, दीज आर
considered as not very much suitable for habitation. People lives there, but the density is very low, है ना. So this is the impact of land. जो land होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. कैसे लैंड को हम नहीं पसंद करते, व्हाट काइंड ऑफ लैंड इज़ नॉट डिज़ायरेबल. अगर वो बहुत ही रफ है ना, अगर बहुत ही स्टीप स्लोप है, या फिर लो लाइंग एरियाज है जहाँ पर वाटर लॉगिंग हो सकती है, लो लाइंग एरियाज है ना. इसके अलावा जो डेजर्ट एरियाज हैं जहाँ पर सॉइल नहीं होता है, सैंड होता है, डेजर्ट, देन थिक फॉरेस्ट, तो इस तरह के जो लैंड होते हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड वेरी मच सूटेबल फॉर हैबिटेशन. तो वहाँ पर होते हैं, पॉपुलेशन होती है, habitation होता है, but it is not densely populated. Okay, so here we are concerned only with land. So climate will be discussed in another chapter. Here you have this idea. If the climate of any place is not harsh climate, है ना, moderate climate है, तो वहाँ पर population ज़्यादा होती है. अगर बहुत ज़्यादा कहीं पर गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एक्सट्रीमली हॉट या एक्सट्रीमली कोल्ड जहाँ पर कंडीशंस होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है. तो इसको आवर फोकस इज लैंड, तो हम लोग लैंड को ही डिस्कस कर रहे हैं, है ना. और इसमें हम ये भी देखते हैं. सो जो लैंड होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा जिस लैंड को प्रेफरेंस मिलती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंस होती हैं, वो प्लेन्स होते हैं और रिवर वैलीज होते हैं. ठीक है, जैसे हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है जिसमें हम रहते हैं, हमारी वाराणसी जहाँ पर है, दैट कम्स अंडर नॉर्दर्न प्लेन. तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही डेंस होता है, बिकॉज सब कुछ सूटेबल है, द लैंड इज सूटेबल, फ्लैट लैंड अवेलेबल होता है ना. तो इस कारण से जो यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए लैंड काफ़ी सूटेबल है, इस कारण से यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही थिक होती है ना. सो दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, जो प्लेन्स एंड रिवर वैलीज होते हैं. ओके, now we will see land use. What is meant by land use? Land use is simple, जैसे आप नाम से आपको समझ में आ रहा है, land use यानी कि land is used for different purposes, है ना. जो हमारे जिस लैंड पे हम रहते हैं, जो लैंड हमारी बेस है, वो लैंड कई सारे पर्पस के लिए यूज होती है. लाइक लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, है ना. Land is used for forestry, land is used for mining, for building houses, for building roads, setting up of industries. So these various uses of land, the purposes for which the land is used, this is called land use. Okay, so the land is used for so many purposes. You have to give the example, and this is termed as land use. Okay, इसमें I told you whenever we are discussing the chapter, you should try to understand कि from where and what type of question can arise, है ना. what do you mean by land use? Explain with example. इस तरह के questions बीच में आप अपने बुक में भी लिख सकते हो with pencil only. Okay, तो उससे आपका जो तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और क्लैरिटी भी होगी अंडरस्टैंडिंग में, है ना. तो ये हमारा लैंड यूज़ इसी को कहते हैं. एंड व्हाट वी फाइंड कि जो लैंड का हम यूज़ करते हैं, इट इज़ डिटरमाइंड बाय सो मेनी फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं जो कि लैंड यूज़ को
डिटरमाइन करते हैं कि लैंड विल बी यूज फॉर व्हाट पर्पस। जैसे लैंड जो है उसमें जो सॉइल कैसी है, इफ द सॉइल इज सुटेबल फॉर वाटर फॉर एग्रीकल्चर तो वो वहाँ पर खेती होती है। इफ इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर देन इट कैन बी यूज फॉर सम अदर पर्पसेस, है ना। इसी तरह से जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा असर करता है लैंड के यूज़ को, कि लैंड विल बी यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। मिनरल्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है ना। सो ऑल दीज फैक्टर्स, दीज आर द फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स जो कि जिसको हम नेचुरल फैक्टर्स कहेंगे, जो कि लैंड यूज़ को डिटरमाइन करता है कि लैंड किस तरह से यूज़ होगी। तो देयर आर टू फैक्टर्स विच डिटरमाइन द लैंड यूज। फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर, first is physical factor and the second is human factor. Okay, these are the two factors. तो फिजिकल फैक्टर में क्या आता है? फिजिकल फैक्टर में सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें आती है। और ह्यूमन फैक्टर में क्या आता है? पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। दीज आर द टू मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। लैंड कैसे यूज होगा, है ना, उसको डिसाइड करने वाले ये दो फैक्टर्स हैं कि लैंड जो है उसकी सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स की क्या अवेलेबिलिटी है, वाटर की क्या अवेलेबिलिटी, और दूसरा फैक्टर ह्यूमन फैक्टर। ओके, अब हम क्या देखते हैं कि जो लैंड है वो उसका क्लासिफिकेशन भी होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड कई सारे बेसिस पे होता है। लाइक एक जो बेसिस है लैंड के क्लासिफिकेशन का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सपोज अगर कोई लैंड है जिसको एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो उसको ओन करता है, तो दैट विल बी नोन एज प्राइवेट लैंड, है ना। और अगर कोई लैंड है जिसको कि कोई एक इंडिविजुअल जो है वो उसको नहीं ओन करता है, बल्कि जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है, लोग जो हैं, लोग किसी जगह के, वो सारे लोग उसको कॉमनली ओन करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जिसको कि जो कि पूरी कम्युनिटी जिसको ओन कर रही है। जैसे फॉडर चाहिए एनिमल्स के लिए, जहाँ पर जो एनिमल्स रेयर करने वाले जहाँ जगह होती हैं वहाँ पर, तो जिस जगह से हम फॉडर का कलेक्शन कर रहे हैं दैट इज़ कॉमन प्रॉपर्टी, दैट प्लेस डज नॉट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल, है ना। इसी तरह से जहाँ से हम मेडिसिनल हर्ब्स का कलेक्शन कर रहे हैं वो भी कॉमन लैंड हुआ। तो इस तरह के जो कम्युनिटी लैंड होते हैं उसको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। ओके, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो अब हम देख रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, private land and community land. Okay, and this community land is also called common property resources. It is also called common ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जो कि पूरी कम्युनिटी की होती है, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं होती है। ओके, सो व्हाट वी फाइंड दैट एज आई टोल्ड यू कि विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देयर इज वेरी ग्रेट डिमांड फॉर लैंड। वी नीड लैंड टू लिव, है ना।
लैंड तो लिमिटेड है, एज वी हैव सीन ओनली 30% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड, एंड दैट टू we see that all this 30% of the earth's surface is not suitable for habitation. So what is happening that the population is growing at a very high rate, but land is limited. जो है वो बढ़ेगा तो नहीं, है ना। तो लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, उसको आप नहीं बढ़ा सकते। हाँ, बढ़ा सकते हैं, एक तरीका होता है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन से अगर हम लैंड की को हैबिटेशन वाले लैंड को अगर बढ़ाते हैं तो उसका अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, बैड कॉन्सिक्वेंसेस होगा, दैट वी आर गोइंग टू फेस, है ना। तो लैंड की स्कैर्सिटी है आज के समय में। जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लैंड जो है वो अवेलेबिलिटी लैंड की बहुत ही लिमिटेड है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है आज के समय में। दूसरी चीज़, एक तो ये हमने क्वांटिटी ऑफ लैंड देखा, अगर क्वालिटी ऑफ लैंड भी देखें तो क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो सेम नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरी जो धरती है सभी जगह लैंड की क्वालिटी एक है। कहीं पर जैसे हमने पीटर और मांबा का ही एग्जाम्पल देखा था, मांबा रॉकी लैंड में रह रही है एंड पीटर ग्रासी लैंड में रह रहे हैं, तो लैंड की क्वालिटी डिफरेंट होती है ना। और जैसे पहले का अगर समय देखें तो क्या होता था, कॉमन लैंड बहुत ज़्यादा होते थे। जो इस बात की हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी लैंड जो होते थे वो ज़्यादा होते थे, इंडिविजुअल लैंड कम होते थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो व्हाट पीपल स्टार्टेड, दे स्टार्टेड एनक्रोचिंग द common lands, they started encroaching the community lands so that they can build up commercial areas, they can build up housing complexes in the urban areas, है ना। just now I told you कि land की अवेलेबिलिटी अगर कम होगी तो उसको बढ़ाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है डिफॉरेस्टेशन। एंड फॉरेस्ट जो होता है वो क्या, दैट इज कॉमन लैंड, है ना, कम्युनिटी की लैंड होती है वो। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है, लैंड की नीड बढ़ती है, तो डिफॉरेस्टेशन करके क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो इंक्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं। इंक्रोच करना मतलब अपना अधिकार जमाना उस लैंड पे जो कि कम्युनिटी लैंड है, जो कि कॉमन लैंड है। और फिर वहाँ पर तरह तरह के जैसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन गए, कमर्शियल एरियाज बन गए, है ना। और ये तो अर्बन एरिया में इस तरह से होगा, और रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड में उसको बदल दिया जाता है। जो कम्युनिटी लैंड है उसको इंक्रोच करके उस पर वो खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज के समय में जो लैंड यूज पैटर्न है वो बहुत चेंजेस उसमें आ गए हैं। एंड these changes in the land use pattern it reflects the cultural change in our society। हमारी सोसाइटी के कल्चर में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, और इस कल्चरल चेंज का जो इम्पैक्ट है वो हमको लैंड यूज पैटर्न में भी देखने को मिलता है ना। तो हमारे नीड्स बढ़ते जा रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें चीज़ें चाहिए, तो कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, और इसके कारण हमारा लैंड यूज पैटर्न भी चेंज हो रहा है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं लैंड से जुड़े हुए, लाइक लैंड डिग्रेडेशन। लैंड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। लैंडस्लाइड्स होते हैं, खास करके जो माउंटेनियस रीजन होते हैं उनमें रेनी सीजन में आपने कई बार टीवी में इस तरह के देखे होंगे सीन्स, लैंडस्लाइड कर जाता है, ज़मीन खिसक जाती है पूरी की पूरी। इससे क्या होता है, लैंड की क्वालिटी ख़राब होती है, सॉइल इरोजन होता है। सॉइल जो कि जो उसका जो ऊपर का लेयर होता है दैट इज़ मोस्ट फर्टाइल, है ना। और जब कई बार ऐसा होता है कि बारिश का पानी पूरे के पूरे ऊपर वाले लेयर को ही बहा कर ले जाती है, दिस इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। इसी तरह से डिजर्टिफिकेशन हो जाता है, जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं धीरे धीरे वो उसको छोड़ के हट जाते हैं। तो इससे क्या होता है, लैंड की क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है। और ये सारी चीज़ें जो है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बड़ा एक थ्रेट है। इन चीज़ों से
land degradation, landslides, soil erosion, desertification. These all are threat to our environment. So what we need to conserve the land. Okay, so this is all for today. In the next class we will continue with this topic.